سبجیکٹ ہے وہ ہے پاؤں دھونا. ٹھیک ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو مسیح یسوع نے اپنے مصلوب ہونے سے جو ہے وہ پہلے کیا تھا. ایک دن پہلے جو ہے یہ وقوع پذیر ہوا تھا. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ یہ واقعہ جو ہے وہ عید فصح سے شروع ہونے والی تھی. ایک شام پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. ساری گاسپلز جو ہیں اس سارے واقعے کو جو ہے وہ بیان کرتی ہیں. پر پاؤں دھونے والا جو بات ہے، پاؤں دھونے والا جو عبارت ہے، وہ ہمیں صرف اور صرف یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 13ویں باب میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے. باقی ساری گاسپلز میں عید فصح کا تو ذکر ہے، مگر اس گاسپل میں جو ہے وہ پرٹیکولرلی پاؤں دھونے کا بھی ذکر ہے کہ پاؤں جو ہیں وہ دھوئے گئے. آئیے میرے ساتھ نکالیے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 13ویں باب کے پہلی آیت سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. وہاں پر لکھا ہے، یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے. عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. اس کی محبت میں دنیا کے لوگوں کے ساتھ جن کے درمیان وہ رہتا تھا، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا، یعنی اپنے جیسوں میں آیا. اپنوں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ مقدسہ مریم یا مقدس یوسف کی فیملی کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ اپنوں میں آیا مطلب اپنے جیسوں میں آیا، جن کا روپ دھارا ان کے درمیان آیا اور ان سے جیسی محبت اس نے شروع میں کی تھی آخری دنوں تک اس کی محبت ان کے لیے ویسی ہی رہی. اس میں لغزش نہیں آئی، کمی گھاٹا نہیں ہوا. اس کی محبت جو ہے وہ فلکچویٹ نہیں ہوئی. اور جب ابلیس شمون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. کپڑے اتارنے کا مطلب ہے اس نے جو آؤٹر روب تھا، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ پورے فل فلیج گارمنٹ اندر ہوتا تھا اور ایک جو ہے وہ فینسی چوگا اوپر بھی ہوتا تھا. تو یہ روایت تھی. انہی چیزوں کے لیے بعض اوقات لکھا بھی گیا ہے کہ جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنا چوگا بیچے اور تلوار خرید لے، یعنی وہ بالکل ننگا نہیں ہو جائے. جو کچھ فینسی ہے اس کے پاس آؤٹر لیئر ہے، جو بادشاہ بھی پہنتے ہیں، جو چوگا پہنتے ہیں اپنے کپڑوں کے اوپر، تاکہ وہ بتا سکیں کہ وہ رائل فیملی سے ہیں یا رائل جو ہے وہ ان کا سٹیٹس ہے، اسے اتارتے. اور یہ چیز جو ہے یہاں پر لکھی ہے کہ وہ اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر پر باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور جو رومال کمر پر باندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے. یہ بات یہاں تک ہے. کچھ کلیسیاں جو ہیں وہ پاؤں دھونے کی رسم کرتی ہیں اور کچھ کلیسیاں جو ہیں اس بات کو نہیں پریکٹس کرتی، فزیکلی پاؤں دھونے کو. وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ شاگردوں نے اس کے بعد جو ہے رسولوں کے اعمال میں اس کا ذکر نہیں ملتا، تو لہٰذا اگر مسیح یسوع نے کیا ہے تو رسولوں نے کیوں نہیں کیا. اس لیے بعض کلیسیاں جو ہیں اس بات کو رسم کے طور پر نہیں مانتی یا اس کو پریکٹس نہیں کرتی. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ جو کرتے ہیں ان کو حقیر جانا جائے یا ان کو جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ چونکہ یہ ایسا نہیں کرتے لہٰذا یہ کرسچینٹی کے جو دائرہ جو سرکل ہے وہاں سے یہ فارغ ہیں. ایسی بات نہیں ہے. پھر وہ شمون پترس تک پہنچا. اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوئے گا؟ کیا؟ بڑی حیرانی سے، بڑی فکر مندی سے کہ خداوند ہو کر، میرا آقا ہو کر، میرا استاد ہو کر اب تو میرے پاؤں دھوئے گا. یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے، میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ میں اپنے مالک سے، اپنے آقا سے، اپنے خداوند سے میں پاؤں دھلواؤں. ایسا نہیں ہو سکتا. چلیں کسی مد میں سے اس نے بات کو انیشیٹ تو کیا، اس نے فکر مندی تو ظاہر کی کہ یہ کام تو میرا ہے کہ میں اپنے مالک، اپنے آقا، اپنے خداوند کے پاؤں دھوؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا خداوند میرے پاؤں دھوئے؟ اب اس کنورسیشن سے جو آگے باتیں ہوئی ہیں
वो लाइफ गिविंग है, जिंदगी बख्शने वाली है। अगरचे कि उस वक्त शागिर्दों के बीच में बैठे हो सकता है उसे थोड़ी सी नदामत भी हुई हो कि जो जवाब जो है वो खुदावन ने उसे दिए थे, पर उससे जो है आइंदा आने वाली हमारे जैसी नस्लों के लिए जो है वो जिंदगी का बाब खुल गया। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। ये बात तेरी समझ में आज नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी जो मैं कर रहा हूं, लेकिन आने वाले वक्त में तो इस बात की अहमियत को, वजह को, मतलब को समझ पाएगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी न धोने पाएगा, अब तक कभी धोने ना पाएगा। उसने एक बड़ा ही जो है एक्सट्रीम सेंटेंस जो है ये जुमला बोला और उसने एहतजाज किया कि खुदावंद ऐसा नहीं हो सकता, मैं तेरे पांव धोऊं ये तो वजह बनती है, पर मेरा मालिक, मेरा उस्ताद मेरे पांव धोए, ये ऐसा कभी नहीं होगा। इट विल नेवर हैपन, आई विल नेवर लेट इट हैपन। खुदावंद ने फिर अगली बात उससे कही, उसने कहा, पतरस अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। इफ आई डू नॉट वॉश यू, यू विल नॉट शेयर लाइफ विद मी। तू मेरे साथ, मेरे बाप के साथ शामिल नहीं है अगर मैं तुझे ना धोऊं तो। शमून पतरस ने उससे कहा है, खुदावंद अब फटाफट ही बदल गया। शमून की बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो पर्सनैलिटी है, जल्दी से बातें कह देता है, जल्दी से जो है वो अपना जुमले जो है वो बदल लेता है, जब एहसास होता है फौरी तौर पर इकरार कर लेता है। हमारी पर्सनैलिटी खा हम कैसे भी हैं, जब समझ आ जाए तो खुदावंद के हुजूर जो है उस बात को जो है वो हमेशा रखिए। रोहेल साहब अपना माइक बंद कर लीजिए। शमून पतरस ने उसे कहा, ए खुदावंद सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उसे कहा, अब मेरे पांव ही नहीं मेरे हाथ भी धो दे और मेरा सर भी धो दे, यानी मुझे पांव के तलवे से मेरे जो मिडल में और फिर मेरे सर को मुझे तो ऐसा कर नहला ही दे। तो यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसके पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं बल्कि सरासर पाक है। यानी तू ऑलरेडी नहा चुका हुआ है, मुझे अब सिर्फ तेरे पांव धोने की जरूरत है, तेरे हाथ और तेरे सर को जो है मुझे धोने की जरूरत नहीं है। जो नहा चुका है उसके पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो। और ये बड़ा जुमानी जुमला है, और तुम पाक हो का मतलब है तुम भी पाक हो, और ये जुमला ये भी कह सकता है कि तुम सब के सब पाक हो। ठीक है, तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। वहां जितने बैठे थे उनके बारे में लिखा है कि तुम पाक हो मगर सब के सब नहीं, और ये बात उसने अपने पकड़वाने वाले के लिए कही थी। खैर, आज हम जो बात करेंगे वो ये है कि पांव धोना जो है कलीसियाओं में जो है इसकी जो है वो अहमियत क्या है। आज हम इसे जो है एक हम सोशल और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि जो है वो पांव धोना क्या होता था। फिर हम इसे ओल्ड टेस्टामेंट के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि पांव धोना जो है वो क्या होता है, और फिर ये कि स्पिरिचुअली हम आज जो हम हैं हम किस तरह से इसको करते हैं, इसे किस तरह से समझते हैं कि खुदावन ने ऐसा करते हुए जो है वो क्या तालीम दी है। हिस्टोरिकली और सोशली उस खित्ते में ये रवाज था कि जितने लोग सफर करके या बाहर से अपने ही घर के अफराद जो हैं जब बाहर से घर में दाखिल होते थे तो उनकी एंट्रेंस पर जो है वो तहारत का मटका रखा जाता था। ठीक है, पाक करने का पानी जो है वो रखा जाता था ताकि आने वाला अपने आप को हर किस्म की गंदगी से और डस्ट से पाक करके अपने आप को अंदर दाखिल हो। फिर जब कभी मेहमान आता था, अब बाज घरों में नौकर चाकर होते थे, बाज में नहीं होते थे, तो जहां नहीं होते थे वहां लोग अपने आप को खुद जो है अपने पांव धोते थे, और जहां पर नौकर होता था वहां पर नौकर जो है वो भागकर जो है वो अपने मालिक के पांव पर जो है वो पानी डालता था और उसे कपड़ा ऑफर करता, या फिर अगर वहां पर बैठने की कुर्सी होती तो उसके पांव जो है वो अपने हाथों से साफ कर देते। ये बातें ज़ियाफतों में भी ऐसे ही था। जब कभी ज़ियाफत होती थी, शादी ब्याह मंगनी होती थी, तो लोग तहारत के मटके वहां रखते थे
काना गलील में भी मटकों के रखने का मतलब ये नहीं था कि वो लोग जो है उसमें को मैं बना डालते थे। तहारत के मटके रखे हुए थे, मनों के हिसाब से उनमें गुंजाइश थी, क्योंकि मेहमान जो आ रहे थे वो सारे के सारे उनमें से पानी लेते, या नौकर उनके जो है वो पांव धुलाते, या फिर लोग जो हैं वो अपने पांव खुद धोकर अंदर आ रहे थे। आज जो बात ईद फसह पर है, ये जो है ये सारे का सारा पुराने अहदनामे में हिस्टोरिकल और सोशल बैकग्राउंड है कि किस तरह से लोग जो है इस बात को प्रैक्टिस किया करते थे। आज इस वाली जो महफिल है, इसमें मेहमान जो हैं वो सारे के सारे शागिर्द हैं, क्योंकि यीशु मसीह को आरजू थी कि वो खाना शागिर्दों के साथ खाए। उसने सारे शागिर्दों को इनवाइट किया हुआ था, वहां सारे मेहमान थे, बेगाना घर में मौजूद थे, और वहां पर आज मेजबान जो है वो यीशु मसीह नासरी है। बीइंग ए हेड ऑफ द टेबल, मेज की जो है वो सदारती कुर्सी पर बैठा हुआ है, पर आज उसने जो है स्टेप डाउन किया है अपने आप को। ही ड्रेस्ड लाइक अ सर्वेंट एंड ही वॉश्ड देयर फीट लाइक अ स्लेव। वो नौकर की माने जो है ज़ेबे तन हुआ, उसने कपड़े पहने और पटका बांधा, और गुलाम की तरह उसने उनके पांव धोए। अब यहां पर जो है बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आती हैं। जब कभी भी कोई शख्स, खा वो कोई बशर जो है यीशु मसीह के पांव धोए, या यीशु मसीह नासरी जो है वो लोगों के या शागिर्दों के पांव धोए, दोनों का जो मतलब है वो एक ही तरह से निकलता है, और वो ये है एक्सेप्टेंस। मैं तुम्हें कबूल करता हूं, मैं तुम्हारे साथ शामिल होता हूं। एक्सेप्टेंस का जो आंसर है वो है, और दूसरा है आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, आप किसी को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, किसी को कबूल करते हैं, और फिर उसे आप इज्जत देते हैं। बाइबल मुकद्दस में 2 दफा चारों गॉस्पल्स में एक वाकया मौजूद है जो लूका 7:36 में भी है, जो यूहन्ना 12:3 में भी है, जो मत्ती 26:6-13 में भी है, मरकस 14 और उसकी 3-9 में भी यह वाकया मौजूद है कि एक खातून जो है यीशु जब किसी फरीसी के यहां, एक वाकया जो है वो ये है कि किसी फरीसी ने यीशु की दावत की, और बाकी 3 गॉस्पल जो हैं वो कहती हैं कि वो बैतनिया में था और वहां पर मरियम ने ये सब कुछ किया था। अब ये सारी बातें जो हैं अगर यहूदी जो है वो नुक्ता निगाह से तनाजुर में देखते हैं, ये अपनी ही किस्म की जो है वो एक बड़ी एक्सट्रीम एक एग्जाम्पल मिलती है कि किस तरह से पांव धोए गए। पांव धोने का जो अमल है, ये जो खास तौर पर लूका की अंजील के 7वें बाब में जो वाकया लिखा है, वहां पर खासी एक्सटेंसिव कन्वर्सेशन है। बाकी के जो तीन जो है वो गॉस्पल जो हवाला देते हैं वहां पर थोड़ी बात लिखी है, लेकिन इस गॉस्पल में जो है खासी एक्सटेंसिव कन्वर्सेशन है। वहां पर जिस शख्स ने मसीह को इनवाइट किया था, उसने दिल ही दिल में यह एतराज किया, अगर यह नबी होता तो जान जाता कि जो उसे छूती है वो कैसी बदजलन है। और मसीह ने मालूम करके कि वो ऐसा सोचता है, मसीह ने उसे जवाब दिया कि मैं जब तेरे घर आया तो तूने मुझे धोने के लिए मेरे पांव ना धुलवाए, मुझे पानी ना दिया। यू डिड नॉट एक्सेप्ट मी। फिर तूने मुझे भरोसा ना दिया, मुझे एक्सेप्ट ना किया, गले ना लगाया, और तीसरी बात तूने मेरे सर को अनॉइंट ना किया। ये 3 चीजें जो हैं ये मसीह ने वहां पर उस शख्स से कही। इन तीनों का मतलब जो है वो एक्सेप्टेंस है, कबूलियत है। तूने मुझे दावत तो दी है पर दिल से नहीं है, दिखावे के लिए तूने किया है, आजमाने के लिए किया है, पर जब से मैं आया हूं इसने मेरे पांव जो है वो चूमना ना छोड़े, इसने आंसुओं से भगोकर उनको धोया, और इसने इत्र मेरे सर पे डाला, मुझे अनॉइंट किया। इससे पहले कि वहां की पब्लिक, वहां के लोग जो हैं किसी मिसकंसेप्शन का शिकार होते, यीशु मसीह ने कहा इसने मेरे दफन की तैयारी कर दी है। क्योंकि उस रोज जब इस्राएली रवायात के मुताबिक, यहूदियों की रवायात के मुताबिक, जब लोग मेरे जिस्म पर खुशबूदार चीजें मलने जाएंगे, मेरी बॉडी मैं वहां पर नहीं हूंगा, मैं जिंदा हो चुका हूंगा, इसलिए वो मसाला जात जो तीसरे दिन जो है वो जिस्म पर मले जाते थे, कब्र में रखे हुए जिस्म पर, तुम्हें उसका चांस नहीं मिलेगा। इसलिए आई टेक दिस ऑयल एज प्रेपरेशन टू माई बरियल।
मैं उसको अपने दफन की तैयारी समझता हूं, इसने मेरे साथ भलाई की है। शी एक्सेप्टेड मी, उसने जो है वो मुझे कबूल किया है और मेरे पांव धोए हैं। अब यीशु मसीह नासरी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? आज वो होस्ट हैं और उसके शागिर्द उसके मेहमान हैं, और उसने उनके पांव धोकर उनको कबूल किया है कि दीज आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं। और ये सारे का सारा चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, आप यीशु मसीह की इस कन्वर्सेशन को, दुआओं को बड़ी लजाजत के साथ उन्होंने खुदावंद के हुजूर कहा, खुदावंद जो तूने मुझे दिए हैं इनमें से एक भी खोने ना पाए, मैं इनको प्रोटेक्ट करता हूं शैतान से, मैं इनको महफूज करता हूं, इनका ईमान ना जाता रहे, ये बैक स्लाइड ना हो जाए। उसने उनको अपने लोग बनाया। और फिर पतरस को जब उसने कहा कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ जिंदगी में शामिल नहीं है, मेरा और तेरा रास्ता अलग होगा। अब अगरचे के शागिर्दों या रसूलों के अमाल में ये बात जो है वो हमें नहीं मिलती, पर तो भी इसका मतलब हरगिज नहीं कि शायद उन्होंने किया ना होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है, फिजिकल या एक रवायती रस्म या प्रैक्टिसेस जो हैं सिर्फ इन्हीं से खुदावंद से मुराद नहीं था, बल्कि इसका मतलब ये था टू वॉश समबडीज फीट, उसे एक्सेप्ट करना, उसे धोना, उसे पाक करना। जिनके तुम गुनाह माफ करोगे उनके हो जाएंगे, जिनको तुम साफ करोगे वो साफ ठहरेंगे, वो पाक ठहरेंगे। और यीशु मसीह नासरी ने जो ये किया, उसने अपने शागिर्दों को जो है हेड टेबल से उठा और उसने नौकर का जो है वो रूप धारा और गुलाम की तरह उनके पांव धोए। उसे अपनी कुर्सी से उठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने लीडरशिप का वो जो है वो रोल दुनिया के सामने रखा है जिसे हम सर्वेंट लीडरशिप कहते हैं। हम कभी कभी बहुत सारे बहन भाई, बहुत सारे खादम, हम जिनमें मैं भी शामिल हूं, शायद हम खाने की प्लेट पकड़कर हम ऐसे लोगों में बैठना नहीं चाहते जो मर्तके के एतबार से शायद किचन में काम कर रहे हों, वहां पर जो है वो जैनिटेरियल जॉब जो है वो कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ शायद हम बैठना और बैठकर खाना पसंद नहीं करते हैं। पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सिखाया है। उसने वो किया जो एज ए सर्वेंट लीडर उसे करना चाहिए था, और उसने उठकर नौकर की मानंद उनका मेजबान होते हुए उनके पांव धोए। और ये तकाजा भी था और इसकी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी थी। और वो कैसे बनती है, हम इस बात को हमने पिछले दिनों में भी सीखा था, आज फिर हम इसे दोहराएंगे। पहली बात यीशु मसीह ने जो है ये किया। और फिर दूसरी बात यह है कि पुराने अहद में जब हैकल का खैमा लगाया जाता था, उसका आउटर कोट होता था, फिर उसका इनर कोट होता था, और फिर पाक तरीन मकाम होता था। हैकल के खैमे के 3 पोर्शंस होते थे, बैरूनी सेहन, अंदरूनी सेहन और फिर पाक तरीन मकाम। जब कोई शख्स एक्सेप्ट कर लिया जाता था, वो खैमा इज्तिमा के बैरूनी पर्दे को हटाकर वो अंदर दाखिल होता था जहां पर कुर्बान गाह होती थी, और कुर्बान गाह से आगे अंदरूनी जो सेहन था, वहां पहुंचने से पहले उसके पर्दे और दरवाजे से पहले, दरवाजा नहीं होता था खैमा इज्तिमा में, सिर्फ पर्दे ही होते थे, दरवाजा को नहीं होता था। अंदरूनी सेहन के पर्दे से पहले जो है वो तहारत का बहुत बड़ा जो है वो हौज बनाया जाता था। ठीक है, अगर बाइबल मुकद्दस में आप इसे पढ़ना चाहें तो ये खुरूज की किताब उसका 30वें बाब में आपको और 17th वर्ष जो है वहां से ये बात आपको मिल जाएगी कि लिखा है कि तू पीतल का हौज बनाना और उसकी कुर्सी भी, और कुर्सी का मतलब ये नहीं कि साथ रख के कि वहां पर जो है वो काहिन कुर्सी पर बैठकर उस पे जो है वो अपने पांव धोएगा, ऐसी बात नहीं है। कुर्सी का मतलब है उसकी फाउंडेशन या उसकी बेस। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो फाउंडेशन या बुनियाद कम ही लफ्ज इस्तेमाल करते थे जब घर बनाते थे। वो कहते हैं यार यदि कुर्सी थोड़ी जी ऊंची रखे आ जाए, यानी इसकी फाउंडेशन जो है उसको थोड़ा ऊंचा रखना। तो उसकी जो बेस थी, उर्दू में जिसका तर्जुमा कुर्सी किया गया है, यानी उस हौज की जो बेस है वो भी उसी पीतल से बनाना। अंदरूनी सेहन में जहां पर रोटियां रखी हैं क्षमादान है, और एक दूसरी चीज भी है, वहां पर खाने के लिए जाने के लिए जहां पर जो है वो काहिन जाकर खाते थे, जहां पर लावी जाकर खाते थे, वहां जाने से पहले जो है उस हौज में जो तहारत का पानी था, जो पाक करने का पानी था, अपने आप को धोते थे और फिर वो अंदर दाखिल होते थे।
पिछले दिनों में हमने क्या सीखा था कि होली कम्युनियन जो है वो महज एक प्रैक्टिस नहीं है, एक रस्म नहीं है। आप एक कुर्बानी में शामिल होते हैं, बर्रे की दायमी कुर्बानी में, और वो कुर्बानी जिसमें से आप खाते हैं और जिसमें से आप पीते हैं, तपावन तपाते हैं। तपावन तपाना जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ अ सैक्रिफाइस। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बोथ आर द सैक्रिफाइस। इससे पहले कि आप खैमा इज्तिमा के बैरूनी सहन से अंदरूनी सहन में दाखिल हो, आप एक्सेप्टेंस से निजात के मराहल में होली कम्युनियन में शामिल हो, आपको तहारत करना बहुत जरूरी है। अपने आप को पाक ठहराना बहुत जरूरी है। अगर ये बात जो है, अगर मैं और आप कुर्बानी के मानों में लेते हैं, तो फिर इसका मतलब यह हुआ, इससे पहले कि होली कम्युनियन हो, इससे पहले कि मसीह यीशु जो है उनके साथ प्याला और रोटी बांटे ये कहकर कि ये नए अहद में मेरा खून है, ये नए अहद में मेरा बदन है जो तोड़ा गया, इससे पहले कि उनको वो होली कम्युनियन दे, उसने उनके पांव धोए ताकि उनमें से कोई शख्स भी नामुनासिब तौर पर गुनाह की हालत में उसमें शामिल ना होने पाए। तुम पाक तो हो मगर सब के सब नहीं। और जो रसूल जो कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए 11वें बाब में कहते हैं, ये बात तो मुझे खुदाबंद से पहुंची है, दीज वर्ड्स आर डायरेक्टली फ्रॉम द माउथ ऑफ माई लॉर्ड, कि उसने दुख उठाने से पहले ऐसा किया। इसलिए शामिल होने से पहले हर बशर अपने आप को जांच ले, परख ले, पहचान ले, अपनी गंदगी, अपनी नजासत का इकरार कर ले, उसे धो ले बर्रे के लहू से। मैं और आप कुर्बानी में शामिल होने से पहले तहारत करते हैं। वो तहारत जो खैमा इज्तिमा में की जाती थी, वहां पे तहारत का हौज बना था, पानी रखा गया था, जहां पर लावी और काहिन जो हैं अपने आप को धोते थे, पाक करते थे, ताकि मर ना जाएं, मौत ना आ जाए। वो तहारत करने के बाद फिर वो अंदरूनी सहन में जाते थे, अंदरूनी सहन से फिर वो कुर्बानगाह का जो खून है कुर्बानी का, उसे लेकर वो पाक तरीन मकाम में दाखिल होते थे। मैं और आप आज कहां खड़े हैं? हम जो है वो कौन सी गॉस्पल को जो है वो हम सीखते हैं इससे पहले कि वो उनको होली कम्युनियन और नए अहद में शामिल करे? उसने वही किया जो पुराने अहद में खैमा इज्तिमा में हुआ करता था। उसने उनके पांव धोए। पतरस से कहा, मैं अगर तुझे धोऊंगा नहीं तो फिर तू मेरे साथ शामिल नहीं है। तुम नहा तो पहले ही चुके हो, जिंदगी गुजारोगे, दुनिया में जिंदगी गुजारोगे, जिस्म के काम तुम्हें आलूदा करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, इससे पहले कि कुर्बानी चढ़ाओ, प्रस्तुत की कुर्बानी लेकर आओ, होली कम्युनियन में शामिल हो, अपने आप को धोया करो, पाक ठहरा करो, इकरार के साथ एक दूसरे के लिए दुआ करो, जमात को पाक ठहराओ, ताकि गुनाह माफ किए जाएं और लोग किसी तौर पर नामुनासिब तौर पर उस कुर्बानी में शामिल ना हो। आज हम क्यों जो है हम मसीह के कलाम का जिक्र करते हैं? क्योंकि कलाम में लिखा है, जो कलाम मैंने तुमसे किया है उसके सबब से तुम पाक हो। जब आप अपने खानदान में भी बैठे होते हैं, होली कम्युनियन के लिए बैठते हैं, खुदा के कलाम का जिक्र करें, उस कलाम के सबब से पाकीज़गी आती है। मैं और आप जब खुदा की मेज पर शामिल होने के लिए आते हैं, जरूरी है कि हर शख्स अपने आप को जांच ले और परख ले, अपने पांव को जो है वो खूब धोए। और पांव का मतलब सिर्फ पांव नहीं है, जिसका पांव फंस जाता है उसकी पूरी जिंदगी फंस जाती है। कलाम में लिखा है कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरे पांव को फिसलने से बचाया है, यानी मुझे जो है मेरी जिंदगी जो है वो स्लिप होने से बचाई है। पांव का मतलब सिर्फ पांव नहीं है, ये पूरी हयात है आपकी, जिसमें आपकी रूह है, बदन है, जान शामिल है। और एक और बात जो है, यीशु मसीह के कहने के मुताबिक जो नहा चुका है उससे सिर्फ पांव धोने की हाजत है। मतलब यह कि जो बैरूनी कोर्ट में मौजूद है, एक्सेप्टेड है, गुनाह माफ हो चुके हैं, उसे अंदरूनी कोर्ट में जाने के लिए उसे सिर्फ उसी बात का इकरार करना है, उसी गंदगी को धोना है जो उसके बदन पर लगी है। खा वो पांव पे लगी है, वो आपके हाथ पर लगी है, आपके सोच ख्याल पर लगी है, आपको वहीं से धोना है।
आपको पूरे का पूरा फिर से नहाने की जरूरत नहीं है। अपने उस कसूर का इकरार करें जो आपसे सरजद हुआ है, जो नहा चुका है, उसे हाजत नहीं कि फिर से नहाए, उसे सिर्फ पांव धोने की जरूरत है। जिंदगी में चलते चलते, जिंदगी के कामों के सबब से आप रूहानी और जिस्मानी तौर पर जिस भी आलाइश को आप समझते हैं कि वो आपकी जिंदगी में मौजूद है, उसे धोने की जरूरत है। हमने सोशल, हिस्टोरिकल और ओल्ड टेस्टामेंट के पर्सपेक्टिव से हमने इन चीजों को देखा। आज हम जहां पर खड़े हैं, हम मसीह यीशु में उस काम को किस तरह से करते हैं। हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं ताकि उनके गुनाह माफ किए जाएं, इंटरसेशन करते हैं। अगर आप में से, मुझ में से, कलीसियाओं में से जो बाकायदा जो है वो पानी से पांव धोने की रस्म करते हैं, वो ठीक करते हैं, लेकिन शागिर्दों ने चूंकि बाद में उनके उमाल में कोई बात शामिल नहीं है, इसलिए बहुत सारे फिरके जो हैं, वो बहुत सारे लोग जो हैं इस बात पे राजी नहीं हैं कि पांव से जो है पांव धोए जाएं, बल्कि वो इसको समझते हैं कि किसी को मुआफ करना। और फिर जो मुआफी की तालीम दी गई थी वो ये कि अगर तेरा भाई 7 के 70 दफा तेरे पास आए तो तू उसे माफ कर। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम रोज जो है कसूर करते हैं, हम रोज उसकी हुजूरी में जाकर इस बात का इकरार कर लेते हैं। ये कोई नामुनासिब बात नहीं लगती कि खुदा के साथ क्या हमको खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है? ये कौन सी रूहानियत है? हमसे हर रोज हो जाता है, हम हर रोज। और यही सोचकर बाज़ औक़ात लोग गिल्टी कॉन्शियस होते हैं, गुनाह के एहसास में पड़े रहते हैं और बैकस्लाइड होते हैं। यीशु मसीह नासरी ने जो काम किया है, उसने किया कि अब तुम नहीं समझते, आइंदा को तुम समझोगे कि जो मैं कर रहा हूं वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। खुदा के बेटे ने ये सब कुछ करके दिखाया। जो इकरार करता है उसमें शामिल रहता है, ताकि उस अबदी और जलाली कुर्बानी में शामिल हो सके, मुनासिब तौर पर, नामुनासिब तौर पर नहीं। बहुत सारे सवाल भी उठे होंगे, आप मुझे रीच कर सकते हैं, बाद में भी आप सवाल कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे पास जवाब हो सकता है ना भी हो, पर हम इस पर कोशिश कर सकते हैं। आज हम ईमानदार होते हुए जब एक दफा मसीह के खून से धुल जाते हैं, बैप्टिज्म ले लेते हैं, नहा चुकते हैं, शामिल होते हैं खुदावंद में, तो कुर्बानी में शामिल होने के लिए, उसकी प्रस्तुति करने के लिए हमें जो है वो अपने पांव धोते रहने की जरूरत है, ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहर सकें। क्योंकि जिसके पांव नहीं धोए जाते वो खुदावंद के साथ शामिल नहीं, या जो पांव नहीं धोता वो खुदावंद में शामिल नहीं रहता। खुदावंद में शामिल रहने के लिए, चलते रहने के लिए, बने रहने के लिए, उसकी कुदरत का हज उठाने के लिए आप अपने पांव अक्सर धोया करें, ताकि उसकी बरकत, उसकी कुदरत और उसकी बख्शिश हम सब पर, हमारे कलीसियाओं पर, खादम जो कलीसिया को पाक करते हैं होली कम्युनियन देने से पहले, उन एलिमेंट्स को भी पाक करते हैं और कलीसिया को भी पाक करते हैं। क्यों? उनके पांव धोते हैं, ताकि वो कुर्बानी जिसमें वो शामिल होने, खाने और पीने को हैं, उसमें नामुनासिब तौर पर कोई शख्स शामिल ना हो सके। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।